आ गए सर, आ गए। स्टार्ट है। Power and mechanical efficiency. The main purpose of running an engine is mechanical power. Power is defined as the rate of doing work and is equal to the product of force and linear velocity. F into V, the product of torque and angular velocity. T and W. The measurement of power involves the measurement of force or torque as well as speed, angular or tangential, angular velocity and tangential velocity, torque and force. The first is done with the help of dynamometer and the later by a tachometer. Tachometer, we have to measure velocity, and dynamometer, angular velocity, or some other devices. The power developed by an engine at the output shaft is called the brake power. The brake power is a 2 pi n t, where 2 pi n 2 pi nt. angular velocity. 2 pi n equal to angular velocity, omega. This is omega and t. T is equal to omega t. Torque in Newton into meter, and n is rotational speed in revolution per second. N is a rotation in speed revolution per second. P is the torque. T is equal to W into omega into R, है ना? W की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? 9.81 into net mass applied. R is the radius. The torque is W into R. Weight into radius. We have to calculate weight by 9 multiplication of 9.81. The specific gravity. This is gravity. The total power developed by combustion of fuel in the combustion chamber is more than brake power and is called indicated power, IP, of the power developed by the engine. IP sum is consumed in overcoming friction between moving parts, some in process of inducting the air and exhausting the product of combustion from the engine combustion chamber. सपोज करो ये combustion chamber है ना? अपन SI और CI दोनों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. combustion स्टार्ट हुआ, combustion होने पर जो एनर्जी डेवलप हुई, हीट एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे? IP, इंडिकेटेड पावर, है ना? उस एनर्जी ने क्या किया? फर्स्ट पिस्टन को मूव किया, है ना? पिस्टन पर फोर्स और प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है?
तो उसमें से कुछ फ्रिक्शन में कंज्यूम हो गई। पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड अटैच है और समय जो फ्रिक्शन है उसमें कुछ चली गई है ना, मूविंग पार्ट्स में। सम इंडक्टिंग इन एयर, कुछ एग्जॉस्ट में निकल गई। एग्जॉस्ट का भी टेम्परेचर होगा, है ना। एंड इंजन कंबशन चेंबर, और कुछ एनर्जी यहाँ से कंडक्शन के थ्रू, है ना, हीट ट्रांसफर हो गया। ठीक है। द इंडिकेटेड पावर इज द पावर डेवलप्ड इन द सिलेंडर एंड फॉर्म्स द बेसिक of evolution of combustion efficiency of the heat release in the cylinder. The difference between IP and BP is an indication of the power lost in the mechanical component of the engine and form the basis of mechanical efficiency. Mechanical efficiency क्या होगी? BP upon IP, brake power upon indicated power. तो efficiency क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इसका आउटपुट हो गया ब्रेक पावर और इनपुट क्या हो गया? इंडिकेटेड पावर। तो ये एफिशिएंसी होगी मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए अपन ने इनपुट दिया था इंडिकेटेड पावर, पिस्टन को अपन ने इंडिकेटेड पावर दी और पिस्टन से अपन को व्हील पर जो आउटपुट मिला वो ब्रेक पावर मिली, है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड बीपी इज कॉल्ड फ्रिक्शन पावर। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज बीपी अपॉन आईपी इक्वल टू बीपी प्लस एफपी। फ्रॉम दिस, अगर ये इधर चला जाए इनमें प्लस में, तो आईपी इक्वल टू क्या हो गया? एफपी प्लस बीपी। मीन इफेक्टिव प्रेशर एंड टॉर्क। मीन इफेक्टिव प्रेशर पीएफ is defined as the hypothetical pressure which is thought to be acting on the piston throughout the power stroke. तो मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? नेट एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आईपी इक्वल टू क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू एरिया इनटू लेंथ एंड क्या है? रोटेशन पर सेकेंड ऑन एन, स्मॉल एन। ये तो हो गया मेन इफेक्टिव प्रेशर। ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक पी आई एम हो गया इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ए एरिया ऑफ पिस्टन, एन रोटेशन ऑफ द इंजन, revolution per second, n is the number of revolution required to complete one engine cycle। तो n की वैल्यू 2 स्ट्रोक के लिए 1 आती है और 4 स्ट्रोक के लिए 2 आती है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4 स्ट्रोक के लिए, और 2 स्ट्रोक के लिए 1 रहेगा। ठीक है। तो ये प्रेशर इनटू एरिया, ये तो फोर्स हो गया। प्रेशर इनटू एरिया क्या हो गया? फोर्स, है ना। फोर्स इनटू लेंथ क्या होगी? हेलो, ये तो फोर्स हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। हाँ कोमल, हेलो। हेलो, हाँ कोमल, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो। हेलो भूपेंद्र, हेलो। यस सर। हाँ भूपेंद्र, अभी आपको बताया था ना P इक्वल टू क्या था? हेलो,
P is mean effective pressure था सर. हेलो, हाँ क्या था? Power P T ओमेगा ये और ओमेगा एक ना, P मीन इफेक्टिव प्रेशर भी था. हाँ सर, T ओमेगा था तो पावर पावर बराबर निकालेंगे तो अपन क्या 14.5 करेंगे? न्यूटन. मीन इफेक्टिव प्रेशर से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? यस और सर. L लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड n/2, हाँ n/2 क्यों लेते हैं अपन? वो सर टू ये स्टॉक और 4 स्टॉक में, 2 स्टॉक में एन लेते हैं और 4 स्टॉक में 2 स्टॉक में एक अपना पूरा होता है साइकिल. इस चीज को n/2 लेते हैं 4 स्टॉक के लिए. for hit and miss governing IP नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर सेकेंड, ठीक है? n क्या हो गया? नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर सेकेंड. We see that for a given engine, the power output can be measured in term of mean effective pressure, MEP. If the mean effective pressure is based on brake power, it is called brake mean effective pressure, and if it based on indicated power, then it is termed as indicated mean effective pressure, IMEP और VMEP. ठीक है? अगर ब्रेक पावर के लिए अपन निकालना है मीन इफेक्टिव प्रेशर तो क्या हो गया? VMEP, और इंडिकेटेड पावर में अपन निकालना है तो IMEP. Similarly, the friction mean effective pressure FMEP can be defined as friction mean effective pressure equal to क्या हो गया? Indicated mean effective pressure minus brake mean effective pressure. ठीक है? The torque ब्रेक पावर इक्वल टू 2 पाई NT T इंटू W अपन ने निकाला था, है ना? तो अपन ब्रेक पावर की जगह ये पुट करेंगे वैल्यू, है ना? तो अपन इससे टॉर्क निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ मीन इफेक्टिव प्रेशर. क्या होगा? n से तो n कट जाएगा, तो P ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इंटू एरिया इंटू लेंथ अपॉन n इंटू 1/2 पाई. तो अपन डायरेक्ट टॉर्क निकाल सकते हैं अपन को मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है तो. का एरिया गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ गिवन है अपन को, स्ट्रोक लेंथ, है ना? अपन को पता है 2 स्ट्रोक है या 4 स्ट्रोक, तो अपन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं. हेलो, ये आपको ये फॉर्मूले आपको नोट करने हैं ना, है ना? ये वाला नोट करो पहले तो, है ना? कॉपी और पेन है आपके पास? हाँ कोमल, यस सर. यस सर हैं. नोट करो ये, है ना? और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर इनसे. ठीक है, ये वाला भी नोट करो. नोट कर लिया? हेलो, हाँ कोमल, नोट कर लिया क्या? हेलो, हाँ कोमल, हेलो, उज्जवल, हेलो, अभिषेक, हेलो,
अभिषेक, हाँ अभिषेक, the torque and the mean effective pressure are related by the engine size. A larger engine produces more torque for the same mean effective pressure. For this reason, torque is not the measure of the ability of an engine to utilize its displacement for producing power from the fuel. हाँ कोमल, हेलो हेलो. It is the mean effective pressure which gives an indication of engine displacement utilization for this conversion. Higher the mean effective pressure, higher will be the power developed by the engine for a given displacement. हाँ हिमांशी, हेलो हेलो. यस Again, सर. हाँ इसमें ये बताओ, आप बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा ये. Engine displacement utilization for this conversion. The ability of an engine to utilize its displacement for producing power. मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेशन. सर मीन इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होगा तो पावर डेवलप ज्यादा होगा. डिस्प्लेसमेंट है ये, एल लेंथ है ना. ठीक है. अच्छा ये बताओ किसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है और कम होता है किसमें. हेलो, सपोज करो ये स्कूटर है, स्कूटर का व्हील साइज इतना बड़ा होता है और ये मोटरसाइकिल, इसका व्हील साइज बड़ा है ना. तो एक रिवॉल्यूशन में इसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ इतनी. यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वापस इस पॉइंट पर, है ना. सपोज करो ये लेंथ हुई, लेकिन अगर ये व्हील साइज बड़ा है, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा यहाँ से तो यहाँ तक जाएगा, कितनी लेंथ कवर करेगा, काफी ज्यादा. इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया और इसमें कम हुआ. यस सर. है ना. हुआ नहीं हुआ. यस सर. हाँ सर. एफिशिएंसी इससे ज्यादा मिलेगी, है ना. माइलेज ज्यादा देगा, ये माइलेज कम देगा. माइलेज कम हो गई स्मॉल व्हील की, हुई नहीं हुई, है ना. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया. यस सर. ठीक. अगेन वी सी दैट एक रिवॉल्यूशन. the horsepower of an engine is dependent on its size and speed. Therefore, it is not possible to compare engine on the basis of either horsepower or torque. Mean effective pressure is the true indication of the relative performance of different engines. Specific output of an engine is defined as the brake output per unit piston displacement. Specific output, brake power upon area into length. ठीक है, हो गया स्पेसिफिक आउटपुट. ठीक है. अब इसमें डिवाइड हो गया एरिया और लेंथ से, तो एरिया और लेंथ के अलावा क्या बचा, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ आरपीएम, है ना. 10 देखो यहाँ पे अपन ने
ये एरिया और लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, दिस इंटू दिस एन इंटू पी, है ना, पी इंटू एन बचा, ठीक है। यस सर। The specific output consists of two elements: the force available to work and the speed with which it is working. Force and speed. Speed in terms of rotation. Thus, for the same piston displacement and BMEP of an engine running at higher speed will give more output. Okay. If speed is higher, then means it gives higher output. It is clear that the output of an engine can be increased by increasing either speed or BMEP. या तो BMEP स्पीड करें, इंक्रीज करें, या RPM, इन दोनों में से कोई भी इंक्रीज करेंगे तो टोटल स्पेसिफिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। Increasing speed involves increasing in the mechanical stresses of the various engine parts, whereas increasing BMEP require better heat release and more load on engine cylinder. Better heat release यानी combustion, combustion से जो heat produce हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो BMEP इंक्रीज हो जाएगा। जो पिस्टन पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज हो गया, और आरपीएम इंक्रीज होगी तो क्या होगी, इंक्रीज इन द मैकेनिकल स्ट्रेसेस ऑन वेरियस इंजन पार्ट्स। इंजन पार्ट्स पे स्ट्रेसेस ज्यादा लगेंगे आरपीएम से, ज्यादा आरपीएम होगी तो ज्यादा रोटेशन होगा तो ज्यादा स्ट्रेसेस होंगी। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये तो स्पेसिफिक आउटपुट हो गया। अब आते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ इंजन is an indication of the measure of the degree to which the engine fills its swept volume. Swept volume कौन सा वॉल्यूम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, टोटल कितनी एयर इनटेक हो सकती है इन केस ऑफ सीआई इंजन, और एसआई के केस में चार्ज, हाउ मच चार्ज to be entered. It is defined as the ratio of mass of air inducted into the engine cylinder during the suction stroke to the mass of the air corresponding to the swept volume. Total swept volume और कितनी air है, total air upon swept volume का ratio क्या होता है, volumetric efficiency. The engine at atmospheric pressure and temperature. Alternatively, it can be defined as a ratio of actual volume inhaled during the suction stroke measured at intake condition to the swept volume of the piston. Okay, and mass, volumetric efficiency, mass of charge actually induced upon mass of the charge corresponding to the cylinder volume at intake pressure and temperature. The volumetric efficiency of engine puts a limit on the amount of fuel which can be efficiently burned in an engine because of the power output is proportional to the amount of air inducted. अगर अपन ये mass of actually इंड्यूस जो एयर है इसका इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हाँ कोमल, हेलो, इससे मास ऑफ चार्ज एक्चुअली इंड्यूस, सर जितना ज्यादा एयर या फिर जितना ज्यादा अपन का वो जो मिक्सचर अंदर आएगा उससे उतना ज्यादा अच्छे से बर्न होएगा और उतनी ज्यादा अपने को एफिशिएंसी मिलेगी अच्छी। डिवाइड कर देते हैं, जितनी ज्यादा
नहीं, एयर CI के अंदर केस में जाएगी उतनी अपन अच्छे से पहले बर्न होएगा सर वो अपना जो। CI के केस में बात करें अपन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के केस में, उसमें क्या होगा? अगर मास ऑफ चार्ज की जगह अपन ले रहे हैं यहाँ पे एयर, है ना? अगर यस एयर सर। का मास ज्यादा एंटर हो रहा है तो क्या होगा? बताओ। ज्यादा इंड्यूस हो रहा है सर, बर्न करने में अच्छे से हेल्प करेगा सर। जितने ज्यादा एयर होएगी, जितने ज्यादा ऑक्सीजन होएगी अंदर, उतने अच्छे से हम्म, बर्न होगा, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी सर। अच्छा, और कोई? हिमांशी? हेलो, हाँ हिमांशी। गैलेक्सी A20 कौन है? हेलो। ये पवन है सर। हाँ पवन। हेलो। अभिषेक। हेलो। यार कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देता, क्या चक्कर है? लोकेश। क्या पता है। हेलो। ये क्या ऑन करके चले गए हैं? गायब हो गए क्या ये लोग? रिंकू। हेलो। क्या पता सर, ये सब यहाँ दिख तो रहे हैं। निकिता। अभिषेक आ हेलो। गया सर। यस सर। हाँ, क्या बाकी लोग गायब हो जाते हैं क्या रिंकू का ऑन करके? हेलो। हाँ अभिषेक, बताओ। सर, मैंने रिंकू कुछ और पूछा अभिषेक आपसे? तो यहीं पे हैं। उनका हाँ। आवाज आई थी। हेलो। हाँ अभिषेक। निकिता। हेलो। हाँ निकिता। हेलो। सर रिंकू। नेट प्रॉब्लम है इसलिए आवाज आ नहीं रही है सही से। कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ निकिता। हेलो। भूपेंद्र। हेलो। हाँ। हाँ भाई। हेलो। हम्म। सर एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। हम्म, कुछ एक आध ओपिनियन और आए तो ठीक रहेगा ना। हिमांशी। हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ हिमांशी, आप बताओ क्या होगा? मास ऑफ एयर एक्चुअली इंड्यूस्ड, अगर अपन ये इंक्रीज करेंगे एयर का तो क्या होगा? हम्म, सर कंबशन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा? क्यों? वाई? इंक्रीज होगी। हाँ, क्यों होगा? हम्म, चलो अपन बताते हैं। देखो इस केस में क्या होता है, सुपर चार्जिंग एक टर्म आती है, सुपर चार्जिंग, है ना? उसमें क्या करते हैं अपन, इंजन का साइज वही रहता है ना, सिलेंडर का साइज सेम है, लेकिन अपन एयर को कंप्रेस करके सप्लाई करते हैं। कंप्रेस यानी उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, तो मास ऑफ एयर ज्यादा हो गया। तो सेम इंजन में अगर मास ऑफ एयर ज्यादा हो गया तो अपन उसमें फ्यूल भी ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं कंप्लीट कंबशन के लिए। अगर एयर ज्यादा है तो अपन ज्यादा फ्यूल भी सप्लाई करेंगे तो भी बर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या होगा, पावर जो आउटपुट मिलेगी वो काफी ज्यादा मिलेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर चार्जिंग। इस केस में क्या होगा, नॉर्मल केस में अगर अपन एयर ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो प्रॉपर कंबशन होगा, यानी जो अपन फ्यूल जो एंटर हो रहा है वो कंप्लीट बर्न हो पाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा फ्यूल की बर्निंग होगी उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा इंडिकेटेड पावर होगी। इंडिकेटेड पावर ज्यादा होगी तो ब्रेक पावर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, है ना? ब्रेक पावर किस पे डिपेंड करती है, इंडिकेटेड पावर पे, और इंडिकेटेड पावर केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन और फ्यूल की जो केमिकल रिएक्शन है वो, तो मेन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन और फ्यूल की केमिकल रिएक्शन प्रॉपर होनी चाहिए, यानी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन नहीं होने चाहिए। अगर अनबर्न्ड रह जाएंगे तो क्या होगा, वो लॉसेस होंगे।
ठीक है, तो वो जो अनबर्न होंगे वो नहीं होना चाहिए, है ना। प्रॉपर कंबशन के लिए क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब एयर या फ्यूल का इनटेक ज्यादा है, ठीक है। अगर कम है तो इसका मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से, सपोज करो ये सिलेंडर का वॉल्यूम था, इसमें से सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ एयर या चार्ज गया, बाकी खाली रह गया। बाकी क्या रह गया फिर, वैक्यूम रह गया। एयर के अलावा क्या रहा फिर, वैक्यूम, ठीक है। हेलो, हाँ कोमल, यस सर। हाँ कोई डाउट? यस, नहीं सर, आ गया समझ में। इंडिकेटेड पावर बढ़ेगी, उससे ब्रेक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है। The volumetric efficiency of an engine puts a limit on the amount of fuel which can be efficiently burned in an engine because the power output is proportional to the amount of air inducted. For supercharged engine, the volumetric efficiency has no meaning as it comes out to be more than unity. Okay. Fuel air ratio. Fuel air ratio is the ratio of the mass of fuel to the mass of air in the fuel air mixture. The fuel air ratio is